Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic mental health and mental hygiene. Alright, subject is your psychology. So here is the introduction. What is the mental health? Mental health is the state of balance between individual and surrounding world, a state of harmony between oneself and others, a coexistence between the reality of the self and other people and the environment. Alright, so mental health is a state of balance between the individual and the surrounding. इंडिविजुअल के बीच में और सराउंडिंग के बीच में एक स्टेट, एक बैलेंस ऑफ स्टेट को बना के रखना, एक हार्मोनी को बना करके रखना बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, अदर के बीच में और खुद के बीच में, अ को एग्जिस्टिंग बिटवीन द रियलिटी ऑफ सेल्फ एंड अदर, सेल्फ के और सेल्फ के बीच में और को एग्जिस्टिंग रियलिटी, रियलिटी के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में एक एडजस्टमेंट बना के रखना. दिस इज द डेफिनेशन इज का एंड adjustment of human being to the world and to each other with the maximum effectiveness and happiness. राइट, सो ह्यूमन बीइंग के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के बीच में, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस से क्या करना, एक एडजस्टमेंट बना के रखना. दिस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी कार्ल मैनेजर 1947. राइट, mental health is the state of mental well-being that enable people to cope with stressor of life, realize their ability, learn well and work well and contribute to their community. Alright, so mental health is the state of mental well-being. Mental health is a state of mental well-being that enable people to cope with stress, right? Stress of life, realize their ability, learn well and work well and contribute to the community. So mental health आपकी एक स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसके अंदर आपका पीपल एक इनेबल करते हैं, पीपल आपका कोप अप करता है आपका स्ट्रेस के साथ, रियल स्ट्रेस ऑफ लाइफ में, रियलाइज देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी क्या है उसको रियलाइज करते हैं, लर्न एंड वेल वर्क, अच्छी तरीके से सीखता है और वर्क करता है और कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी में. राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO एंड नेक्स्ट वन इज APA, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन. ऑलराइट, सो American Psychiatric Association. A state of mind characterized by emotional well-being, good behavioral adjustment, relative freedom from anxiety and disabling symptom, and a capacity to establish constructive relationship and cope with the ordinary demand and stress of life. Alright. सो दिस आर द स्टेट ऑफ माइंड. ये क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है. इसके अंदर क्या होता है, इमोशनल वेलबींग होना, गुड बिहेवियरल एडजस्टमेंट होना, रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड डिसेबलिंग सिम्टम एंड कैपेसिटी टू establish constructive relationship and cope with the ordinary demand and stressor of the life. ऑर्डिनरी डिमांड के अकॉर्डिंग कोप अप करना है एंड इसके अलावा आपका इमोशनल वेलबींग होना, गुड बिहेवियरल एडजस्टमेंट होना, रिलेटिव टू द फ्रीडम ऑफ एंजाइटी एंड डिसेबल, आपकी जो भी सिम्टम है उससे डिसेबल होना, दी कंस्ट्रक्टिव वे में कोप अप होना वाले. Thus, mental health would be include not only the absence of diagnostic labels such as schizophrenia and obsessive compulsive disorder, but also the ability to cope with the stressor of daily living, freedom from anxieties, and generally a positive outlook toward change in fortune and to cope with those. Alright. सो मेंटल हेल्थ वुड बी इंक्लूड, मेंटल हेल्थ में आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, इंक्लूड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक लेवल such as schizophrenia, obsessive compulsive disorder, but also the ability to cope with stressor. Right, not only कि absence of diagnostic level आपका absence like schizophrenia हो गया, OCD हो गया, obsessive compulsive disorder, बट ऑल्सो आगे क्या बताया जा रहा है, बट ऑल्सो कोप टू विद द स्ट्रेसर ऑफ लाइफ,
इसके अलावा भी आप जो किस तरीके से कोप ऑफ करते हैं स्ट्रेसर ऑफ लाइफ के साथ, लिविंग आपका फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड जनरली अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड द चेंज इन फॉर्च्यून एंड फॉर्च्यून्स एंड कोप विद दोस, और किस तरीके से आप उनके साथ कोप अप करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ बाय जहोदा, राइट, जहोदा। He describes 6 concepts of mental health in her book titled Current Concept of Positive Mental Health. Alright, so इन्होंने अपना जो है डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में, हर बुक टाइटल है इसका करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, सेकंड है अचीवमेंट ऑफ टास्क, थर्ड है इंटीग्रेशन, फोर्थ है ऑटोनॉमी, फिफ्थ है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, सिक्स है इन्वायरमेंटल मास्टरी। सो these 6 कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। सो वन बाय हम वन देखते हैं एक एक करके सभी को। फर्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? इट इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द सेल्फ, नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। ऑलराइट, सो इट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव व्यू, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव व्यू होता है जिसमें इंक्लूडिंग सेल्फ, इसमें हमारा सेल्फ का नॉलेज होना, सेल्फ के बारे में एक्सेप्टेंस होना, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारी लिमिटेशन है, सेल्फ के बारे में ऑब्जर्वेबल नॉलेज होना, सेल्फ के बारे में इंक्लूडिंग नॉलेज होना। राइट, द इंडिविजुअल फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल आपका फील करता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम क्या है, एंड सिक्योरिटी क्या है विद इन द एनवायरनमेंट, ही नो हिमसेल्फ, और उसका पॉजिटिव आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टूवर्ड सेल्फ, टूवर्ड द एनवायरनमेंट, टूवर्ड द पर्सन, हिज आइडेंटिटी, हिज सिक्योरिटी, हिज पोटेंशियल, हिज वीकनेस, ही नो। राइट, नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ टास्क। It is the ability of an individual to successfully achieve the task associated with each level of the development. Alright, so each level of development के साथ जो भी टास्क है, जो भी एक टास्क है कि इस एज लेवल पर, इस डेवलपमेंटल एज पर ये पर्सन है, उसको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उसका जो मैच्योरिटी ऑफ लेवल है उसका उतना होना, इसको ही बोला जाता है अचीवमेंट ऑफ द टास्क। राइट, तो उस टास्क को वो कितना अचीव कर पा रहा है, कितना इफेक्टिवली वो वर्क को, वो टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, जो भी वर्क उसका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, यदि वो प्रॉपर कर रहा है तो ही इज दी मेंटली फिट। राइट, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कि क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी। इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू एडेप्टेबिलिटी रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट and the development of the philosophy of the life, both which help the individual maintain anxiety and manageable level in response to stressful situation। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंटीग्रिटी होना, जिसके अंदर आता है आपका एडेप्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंटल ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को मेंटेन करना, देयर एंजाइटी मैनेजेबल लेवल होना, खुद का स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना, दिस इज द इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी रेफर टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन independent self-directed manner, making choice and accepting responsibilities for the outcome। alright, autonomy मतलब कि self, ऑटोनॉमी रेफर टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है टू परफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली वो परफॉर्म कर सकता है जो भी टास्क, उसका वर्क, सेल्फ डायरेक्टेड उसका मैनर, मेकिंग चॉइस एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस को बनाना, एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉर द आउटकम, जो भी आउटकम है उसके लिए एक्सेप्ट करना, खुद के लिए ऑटोनॉमी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को परसीव करना। राइट, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक डायग्राम जिसमें क्या बताया जा रहा है, आपने मीम्स देखा होगा, बहुत जगह है, नई जगह नहीं है। राइट, सो परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को परसीव करना। राइट, परसेप्शन ऑफ द रियलिटी इंक्लूड परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट।
not only reality perception of environment without distortion, as well as the capacity of empathy, साथ ही साथ कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड ऑफ अदर, लोगों का नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उसको भी समझना, इन्वायरमेंट को समझना, रियलिटी को परसीव करना एज इट इज, जो रियलिटी है उसको परसीव करना विदाउट एनी डिस्टोर्शन, एज पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एम्पैथी होना, सोशल सेंसिटिविटी होना, रिस्पेक्ट होना और कंसर्न होना वांट्स और नीड के बीच, दिस इज द परसेप्शन ऑफ द रियलिटी। Next, environmental mastery. Environmental mastery indicates, suggests that individual has achieved a satisfactory role within group. Within the group, society or environment, he is able to love and accept the love of others. Alright, so environmental mastery क्या है? Environmental mastery indicate करती है, this suggests that individual has achieved self satisfactory को achieve करना within her role, his role, group of विद इन दी ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो भी उसका मतलब सेल्फ जो मास्टरी है, इन्वायरमेंटल मास्टरी, उसको अचीव करना विद इन दी ग्रुप, सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ही इज एबल, और वो एबल होना चाहिए, ही और शी इज एबल टू एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स, लोगों से जो उसे प्यार मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा नहीं अपुनिस भगवान है, राइट। मेंटल हाइजीन, नेक्स्ट है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन जैसे कि आप फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं, बॉडी का हाइजीन, ग्रूमिंग मेंटेन करते हैं, सिमिलरली आपका मेंटल हाइजीन भी होता है, राइट। मेंटल हाइजीन आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, राइट। सो मेंटल हाइजीन इज द साइंस, मेंटल हाइजीन इज द साइंस विच स्टडीज लॉ and means of curing and preventing mental disease, personality disorder and other abnormalities for balancing, adjustment and healthy development of the personality. हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए, बैलेंसिंग के लिए, एबनॉर्मलिटीज सच एज जैसे कि आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, यानी एबनॉर्मलिटीज हो गई, मेंटल डिसीज हो गया, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को क्यूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। मेंटल हाइजीन आपका एक साइंस है, उसमें हम स्टडी करते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, जिससे कि हम मेंटल डिसीजेस को प्रिवेंट कर पाए, पर्सनालिटी डिसीजेस को, डिसऑर्डर को हम प्रिवेंट कर पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटल हाइजीन, राइट। अब हम देखेंगे मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ द मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, सो मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स, mental hygiene is consist of measure to reduce the incidence of mental illness। मेंटल हाइजीन आपका एक कंसिस्ट ऑफ मेजर्स होता है, जिसके अंदर हम मेंटल इलनेस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं, प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट के लिए, एज वेल एज प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये जो डेफिनेशन है सिंह एंड तिवारी ने दी है 1971 में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? फर्स्ट इज द प्रिवेंशन, मेजर टू द प्रिवेंट मेंटल इलनेस। मेजर मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉजेस लीडिंग टू द माल एडजस्टमेंट वेदर पर्सनल और सोशल एंड टेकिंग सुटेबल प्रिकॉशन टू एलिमिनेट दिस। राइट, सो इसमें क्या है आपका आइडेंटिफाई द कॉजेस, कॉजेस को आइडेंटिफाई करना, लीडिंग टू द माल एडजस्टमेंट वेदर पर्सनल और सोशल। राइट, आइडेंटिफाई द कॉजेस, कॉजेस को आइडेंटिफाई करना, लीडिंग टू द माल एडजस्टमेंट, जो कि लीड कर रहे हैं आपके माल एडजस्टमेंट को, वेदर इट इज द पर्सनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, एंड टेकिंग सुटेबल प्रिकॉशन, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सुटेबल प्रिकॉशन उसको taking suitable precaution to eliminate the same, right? taking suitable precaution लेना उनको eliminate करने के लिए। next है suggesting ways and means for achieving emotional and social adjustment, right? ऐसा कुछ सजेस्ट करना, इस तरीका निकालना जिससे कि हम इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को अचीव कर पाए, राइट?
suggesting method for resolving inner conflict and frustration, for getting rid of anxiety, tension and emotional disturbance. ऐसा इसमें सजेस्ट करते हैं, इसमें सुझाव देते हैं फॉर मेंटल मेथड ऑफ रिजॉल्विंग इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, लाइक फ्रस्ट्रेशन से गेट रीड करने के लिए, एंजाइटी से गेटिंग रीड करने के लिए, एंजाइटी से दूर भागने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, टेंशन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। One can enjoy good mental health if suitable care is taken for its preservation and promotion. The following activities preserve mental health. Right? यदि हम हमारी हेल्थ को अच्छे तरीके से सूटेबल हम उसे केयर देंगे, हम उसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम उसे गुड एंजॉय कर पाएंगे। तो इसके लिए फॉलोइंग एक्टिविटीज है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है डेवलपिंग एन इनर पोटेंशियल को डेवलप करना। सेकंड है अटेनिंग इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। थर्ड है अचीविंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एडिक्वेसी। नेक्स्ट है प्रमोटिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरेक्शन। डेवलप इनर पोटेंशियल को डेवलप करना, अटेंड करना इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को, अचीव करना पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी को, पर्सनल सिक्योरिटी फाइनेंशियल होगा, सोशल सिक्योरिटी होगा, एडिक्वेसी को मेंटेन करना, प्रमोट करना हेल्दी रिलेशनशिप को, ग्रुप इंटरेक्शन को प्रमोट करना, आईपीआर को मेंटेन करना। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर्स में क्या है, एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ, राइट। An individual can enjoy good mental health to go the extent one is cured as early as possible of mental illness and disease. He is suffering from the following are some curative measures. जितना जल्दी हम उसे प्रिवेंट कर पाते हैं, जितना जल्दी हम उसे क्यूर कर पाएंगे, उतना ही इंडिविजुअल गुड मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर सकता है। बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस यदि ज़्यादा सीवियर हो गई है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सम क्यूरेटिव मेजर्स, यदि सफ़र कर रहा है। फर्स्ट है एडिक्वेटली इक्विफाई विद द नॉलेज रिगार्डिंग टाइप ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। एडिक्वेटली उसको नॉलेज होना, फुलफिल होना, नॉलेज इक्विफाई होना विद द नॉलेज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस एंड टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट एंड क्यूरिंग मेंटल इलनेस। अलग अलग तरीके की जो थेरेपीज है उनको सजेस्ट करना, सुझाव करना, अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट क्यूर के लिए, मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर के लिए सजेस्ट करना। नेक्स्ट सजेस्ट मेथड फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट फॉर मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन के लिए मेथड फॉर रिहेबिलिटेशन की मेथड के लिए सजेस्ट करना, रीएडजस्टमेंट मेंटली इल पर्सन को रिहेबिलिटेट करने के लिए ऐसी मेथड सजेस्ट करना जिससे कि वो रिहेबिलिटेट कर पाए, वापस से रीएडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। Balanced development of personality hold the key for individuals' adjustment with oneself and with oneself and the environment. Right? Balanced development of personality hold is often individuals' adjustment. Once खुद को वन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को जो पर्सनालिटी है उसमें बैलेंस को मेंटेन करना, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, डेवलप पर्सनालिटी एक की रोल प्ले करती है इंडिविजुअल के लिए ताकि वो एडजस्ट कर पाए खुद के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। लैक बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी रिजल्ट इन माल एडजस्टमेंट अनहैप्पीनेस। यदि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है एनवायरनमेंट के साथ खुद की पर्सनालिटी को, तो इसका रिजल्ट ये होगा मैल एडप्शन से कि वो अनहैप्पी होगा। दस ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप इन अ प्री रिक्विसाइट फॉर इंडिविजुअल टू दी इमोशनली स्टेबल एंड बैलेंस। यदि पर्सनालिटी को वो अच्छी तरीके से डेवलप करता है, प्री रिक्विसाइट करता है फॉर एन इंडिविजुअल, तो इमोशनली वो स्टेबल हो सकता है, वेल बैलेंस हो सकता है। राइट। नेक्स्ट लीडिंग हैप्पी एंड contented life. The ability of an individual to lead fuller and happier life directly proportional to the mental health enjoyed by him. Right.
तो जो भी उसकी लाइफ है वो संतोषपूर्ण, उसको फुलफिल एंड कंटेनमेंट के साथ जी पाए, हैप्पीनेस के साथ जी पाए। सो मेंटल हेल्थ को वो अपने एंजॉय कर सकता है। दस इंडिविजुअल मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव टू गेट अलोंग विथ हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट वेल एंड अवॉइड अननेसेसरी एंजाइटीज। इस तरीके के जो इस प्रकार का जो इंडिविजुअल होता है ये हमेशा हैप्पी रहता है, स्ट्राइव करता है अपने गेट अलोंग विथ हिमसेल्फ, खुद के साथ खुद की कंपनी को एंजॉय करता है, एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है वेल एंड अवॉइड अननेसेसरी एंजाइटी को एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन को वो अवॉइड करता है, खुद के साथ हैप्पी रहता है, एनवायरनमेंट के साथ एंजॉय करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। Now we are discuss about characteristic of mentally healthy person. मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो फर्स्ट है ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। उसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो खुद से एडजस्ट कर पाए। ही हैज एन सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील वर्थ वाइल इम्पोर्टेंट। ही हैज एन सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, उसकी पर्सनल वर्थ क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, कैपेसिटी कॉम्पिटेंस क्या है, वो उसको पता होना चाहिए। फील वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट, जब भी उसके इम्पोर्टेंट है वो अपनी वर्थ अपनी वैल्यूज का यूज कर पाए, राइट। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन। वह अपनी प्रॉब्लम को खुद ही लार्जली लेवल पर खुद से सॉल्व कर पाए, खुद से एफर्ट कर पाए अपने डिसीजन को मेक करने के लिए। ही हैज सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील secure in group, so understanding of the other people problem and motives, दूसरे लोगों का मोटिव्स और उनके प्रॉब्लम को समझ पाए ग्रुप के अंदर। और पर्सनल वेलबींग, पर्सनल सिक्योरिटी को फील कर पाए, सिक्योर कर पाए अपने ग्रुप को। ही है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अपनी वर्क को लेकर के, मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ को लेकर के। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, है एक्सेप्ट कर सकता है लव को, और प्यार, लोगों से प्यार को लेना, लोगों को प्यार बांटना। ही लिव इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, वह रियलिटी की दुनिया में जिए ना कि फैंटेसी की दुनिया में, डे ड्रीमिंग की दुनिया में, सपनों की दुनिया में। नेक्स्ट है ही शो emotional maturity in his behavior and develop a capacity to tolerate frustration and disappointment in life। अपनी लाइफ में वो टॉलरेट कर पाए फ्रस्ट्रेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को, और ही हैज़ डेवलप अ कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी उसके पास होना चाहिए, इतना इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए उसके बिहेवियर में कि वो डेली लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। ही हैज़ डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी। अब वो ही अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को डेवलप कर पाए जो कि उसको मीनिंग एंड पर्पस दे अपने लाइफ में। ही हैज डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी में वो ऐसे काम करे जो कि मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, फिलॉसफी ऑफ लाइफ को वो कुछ अचीव कर पाए अपनी लाइफ में। ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर हो, सेंस ऑफ पर्पस हो। ही हैज़ a variety of interest and generally live a well balanced life of work, rest and recreation। उसको वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए पीपल्स के, जनरली उसकी जो लाइफ लिव करे वो कम्प्लीटली वेल बैलेंस लाइफ हो, वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन का जो उसका टाइमिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, राइट। नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ। पुअर मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। Symptoms of mental disorder vary depending upon the type and severity of the condition. Some general symptoms that may suggest a mental disorder are given as follow. इन यंगर चिल्ड्रन में क्या क्या आपको मेंटल साइन देखने को मिलेंगे? चेंज इन दी स्कूल परफॉर्मेंस, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस में चेंज होना। पुअर ग्रेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट करना पर ग्रेड्स उसका पुअर होना। एक्सेसिव वरी और एंजाइटी होना, हाइपर एक्टिविटी होना, परसिस्टेंट नाइटमेयर्स होना, परसिस्टेंस डिसओबियंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर होना, आर्ग्यूमेंट होना, फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंडर होना, फ्रीक्वेंटली उसका टेम्पर टेंडर चेंज होना। इन ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होगा? इन एडोलसेंस में
abuse of drug and alcohol and drug abuse होना, inability to cope with daily problem and activities, change in sleeping and eating habit and sleeping habit में change होना, excessive complaint relating to physical problems excessive complaint करना, and defying authority, skipping school, stealing or damaging प्रॉपर्टी, राइट। डिफाइनिंग ऑथोरिटी, अथॉरिटी को डिफाइन करना, स्किप करना, स्कूल को चोरी करना, एंड डैमेजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को डैमेज करना, इंटेंस फेयर होना, गेनिंग वेट गेनिंग करने में बहुत ज़्यादा फेयर होना, लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड होना, ऑफन अलोंग विथ पुअर एपेटाइट एंड थॉट ऑफ डेथ। ऑलराइट, लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड होना लंबे समय तक, ऑफन साथ ही साथ अलोंग विथ पुअर एपेटाइट होना, भूख नहीं लगना, एंड थॉट ऑफ दैट का थॉट आना, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। इन अडल्ट में क्या होगा, कंफ्यूज थिंकिंग होना, चूज नहीं कर पाना क्या चीजें करना है क्या नहीं, कंफ्यूज होना, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी होना, एक्सट्रीम हाई एंड लो इन मूड होना, एक्सेसिव फेयर होना, वरी और एंजाइटी होना, सोशल विड्रॉवल होना, ड्रामेटिक चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट में चेंजेस होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर होना, डिल्यूशन और हेल्यूसिनेशन होना, सीइंग और हेयरिंग, you know about that, increased ability to cope with the daily problem and activities, thought of suicide, denial of obvious problem, reality को accept नहीं करना, denial करना, unexplained physical problems होना, alcohol and drug abuse होना, accept promotive and preventive nature of health strategies. In 1916, psychiatrist Gerald Kaplan described level of prevention specific to psychiatry. He described primary prevention as an effort directed toward reducing the incidence of mental disorder in a community. Secondary prevention referred to decreasing the duration of disorder, while tertiary prevention referred to the reducing the level of impairment. Alright, सो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या बताया, प्रिवेंशन एज एफर्ट डायरेक्टेड टूवर्ड द रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। प्राइमरी में क्या करते हैं, मेंटल जो इंसिडेंस है मेंटल डिसऑर्डर का कम्युनिटी में उसको रिड्यूस करना, उसको प्रिवेंट करना, इसके लिए हम इसमें एफर्ट करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर, जो ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर है उसको डिक्रीज करना, जबकि टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रेफर टू द रिड्यूस लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट के लेवल को रिड्यूस करना। गॉट इट। प्राइमरी प्रिवेंशन, रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी प्रिवेंशन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सेस are in a key position to identify individual, family and group need, conflict and stressors। इसमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं, स्पेशली जो नर्सेस होती हैं, इनका जो की पोजीशन होता है टू आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड ग्रुप की नीड क्या है, क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेसर क्या है, और उनकी हेल्प करना। दे प्ले अ मेजर रोल इन आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप एंड प्रिवेंटिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ मेंटल इलनेस अमंग देम। ये जो है आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क ऑफ ग्रुप को और उनको प्रिवेंट करना ऑक्यूरेंस ऑफ मेंटल इलनेस को अमंग देम। हियर विल बी डिस्कस कम इंटरवेंशन, डिस्कस कम इंटरवेंशन करना। नेक्स्ट इंडिविजुअल कैंटर्ड इंटरवेंशन। अब जो कुछ प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इनको ट्रीट करना अकॉर्डिंग टू दी एंटीनेटल केयर टू दी मदर एंड एजुकेटिंग हर रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इरिडिएशन ड्रग and prematurity, ensuring timely and efficient obstetrical assistance to guard against the ill effect of anorexia and injury of the newborn at birth, dietary correction to the infant suffering from the metabolic disorder, correction of the endocrine disorder, liberalization of the law regarding termination of unwanted pregnancy, training program for the physical and mentally handicapped children like blind, deaf
deaf and mute and mentally subnormal, etc. Counseling the parent of physically and mentally handicapped children with the particular reference to the nature of defect. Parent need to accept, support the child emotionally and be satisfied with achievement limited goal in various field. Alright, उनको एंटीनेटल केयर के बारे में बताना एंड जो इरेडिकेशन ड्रग्स होती है, प्री मेच्योरी ड्रग होती है, वो किस तरीके से बेबी पे अफेक्ट करती है, न्यूबॉर्न इंजरी क्या हो सकती है, एनोरेक्सिया के बारे में बताना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में टीच करना एंड जो आपकी एमटीपी होता है मेडिकल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी उसके बारे में ट्रेन करना प्रोग्राम्स के बारे में, फिजिकल एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में क्या क्या, ब्लाइंडनेस हो गया, डीफ हो गया, म्यूट हो गया, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, अबनॉर्मलिटीज के बारे में बताना, काउंसलिंग करना पेरेंट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में विद पार्टिकुलर रेफरेंस के साथ, and parent need accept support the child emotionally and satisfy with the achievement limitation goals. चाइल्ड ओरिएंटेड इंटरवेंशन करना एट स्कूल में, सेंसिटाइजिंग पेरेंट एंड टीचर ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पेरेंट एंड टीचर को टीच करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम रिलेटेड स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस एंड emotional disturbance among school children and providing timely intervention, राइट। स्कूल में जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इमोशनल डिस्टर्बेंस अमंग स्कूल चिल्ड्रन में क्या क्या प्रॉब्लम, उसको टाइमली इंटरवेंट करना, उसको एनालाइज करना। स्कूल टीचर कैन टॉट टू रिकॉग्नाइज द बिगिनिंग सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम एंड रेफर इट टू अप्रोप्रिएट एजेंसीज। स्कूल टीचर्स जो है उनको बताया जाना चाहिए, टॉट करना चाहिए टू रिकॉग्नाइज बिगिनिंग ऑफ सिम्टम, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करे एंड प्रेफर करे अप्रोप्रिएट एजेंसीज को। Family center intervention to ensure harmonious relationship, consulting parent about appropriate disciplinary measure, promoting open health communication in families, rendering crisis counseling to the parent of physical and mentally handicapped children, physically and mentally health children को क्राइसिस काउंसलिंग करना, पेरेंट को प्रमोट करना ओपन हेल्थ कम्युनिकेशन इन फैमिलीज में, डिसिप्लिनरी मेजर को मेंटेन करना, एंश्योर हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग मेंबर ऑफ फैमिली एंड टीचिंग हेल्दी अडेप्टिव टेक्निक एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इवेंट। नेक्स्ट है इंटरवेंशन फॉर फैमिलीज इन क्राइसिस, फैमिली में क्राइसिस के समय क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। इन डेवलपमेंटल क्राइसिस सिचुएशन सच एज चाइल्ड पासिंग थ्रू एडोलसेंस, बर्थ ऑफ न्यू बेबी, रिटायरमेंट और menopause, death or wage earner in the family, desertion by the spouse, etc. Crisis intervention can be given at mental hygiene clinics, psychiatric first aid center, walk-in clinics. Mental health education, conduct mass health education programs on prevention of mental illness and promotion of mental health in the community using film show, flashcard and appropriate audio visual ads. Next one is the educate health worker on prevention of mental illness so that they can function effectively in all the areas of prevention. Next is society center prevention measure, community development, culturally deprived family need biological and psychosocial supplies to avoid incidents of psychopathy, alcoholism, drug addiction, crime and mental illness. Secondary prevention is that secondary prevention target people showing early symptom of the mental health disruption but regain pre-morbid level functioning through effective through aggressive treatment. Role of nurse early diagnosis and case finding, early diagnose करना, case को finding करना. This can be achieved by educating the public, community leaders, industrials, महिला मंडल्स, बाल balwadis, etc. on how to recognize early symptom of mental illness, case finding
can be done through screening and periodic examination of population at risk, monitoring of patient, etc. Community mental health nurse should detect early sign of increased anxiety level, decreased ability to cope with stress, failure to perceive self-environment and or reality accurately in the clinics, school, home, healthcare, and workplace provide direct service as appropriate. Community health nurse should be detect early sign of like anxiety level, decreased ability to cope with stress, failure to perceive self-environment, reality accurately in the clinics हो गया, schools हैं आपके, homes care हैं, workplace है, and provide direct service as appropriate. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल, जो भी हेल्थ पर्सनल है उनको ट्रेनिंग करना प्रॉपरली, ओरिएंटेड कोर्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द हेल्थ वर्कर्स टू डिटेक्ट केस इन कोर्स ऑफ द रूटीन वर्क स्क्रीनिंग प्रोग्राम. Simple questionnaires should be developed to identify the symptoms of mental illness and same administered in the community for the early identification of cases. These questionnaires can be translated into local language for wide use in the college, school or industries, etc. Early preference, public should be educated to refer such as cases to hospital as soon as the early symptom of mental illness are recognized. Fifth, the prompt treatment, early and effective treatment for the patient and counseling service to caregiver of mentally ill patient should be provided. Second, in the consultation service, nurses working in the general hospital may come across patients suffering from the peripheral psychosis, puerperal psychosis, anxiety state, peptic ulcer, ulcerative colitis, bronchial asthma, etc. These basic are providers need guidance in consulting to deal with such condition in an effective manner. Crisis intervention, if the crisis is not tackled in the time, it may lead to mental disorder or even suicide. Anticipation the crisis situation and guiding the individual can help him cope with crisis situation in better way. Next, the tertiary prevention. Tertiary prevention target on those with mental illness and help to reduce the severity, discomfort, and disability associated with it. In this form of prevention, community mental health nurse play a vital role in monitoring the progress of discharged patient, especially with regard to their medication regimen and coordination care role of nurse. Family members should be actively involved in the treatment program to nurse effective follow-up. Occupational and recreational activities should be organized in the hospital to prevent idealizing lazy activities. There should be constant communication between community health nurse and mental health institution regarding follow-up of discharged patient as utilize M of hospital and community-based program is re-socialize and remotive the patient for functional role the community. An important intervention in the maintenance of patients at their own homes in community is the training in community in living TCL program designed by the Stein Test. In this model, when the patient is referred to hospital for admission, the staff goes to community and stay with patient rather than the patient going to the hospital and being with the staff. Right? This real world experience with the patient enables the nurse to accurately assess the skill that the person need to develop and mutually agree or on realistic goals. So these all are the aspect जिससे कि हम इसे मेजर कर सकते हैं. And another aspect of community life that is more difficult to assess accurately
and deal with effectively the stigma attached to the mental illness. Many patients and their families try to avoid stigma by keeping the nature of person's illness is secret, right? स्टिग्मा मतलब कि एक मिथ होना है कि स्टिग्मा होना है कि उसको सीक्रेट रखना, राइट? उसको एक्सपोज रिवील नहीं करना, डॉक्टर को नहीं बताना. the need for sec the need for secrecy place additional stress on the family system as there is always the fear of truth being revealed. Nurses in the community are key position to monitor community attitude and help foster realistic attitude. Mental health services after government mental health. There are these so many mental health services. These are working to the promotion, curative, and prevention of the mental health awareness programs like government mental health agencies, voluntary organization on government organization, partial hospitalization, quarter-way homes, halfway homes, self-help groups, suicide prevention centers, community group homes, district rehabilitation center. All these, all right. सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क. यहाँ पर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में, वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इल पर्सन के बारे में, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स के बारे में, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में. ऑलराइट, सो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.